स्टार्टअप्स 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 बहुत सुनने में आ रहा है ना ये वर्ड। बट यार आज से 8 से 10 साल पहले तो ये वर्ड इतना ट्रेंड में था नहीं। ये कुछ नया है क्या? और वैसे भी स्टार्टअप में लोग करते ही क्या है? धंधा ही ना। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड अ बिजनेस? Hi, this is Maddie from Karo Startup, and today we are going to know about some interesting facts about the startups by differentiating it with business. Well, to give it a start, let's consider an example of Sagar and Sushant. Both of them want to do a business in the clothing industry, and that too by selling garments. Now what happens is that Sagar has already some savings with his family to begin the business. So he goes to the textile industries, gives the orders and buys the clothes in bulk and brings them to his shop that he bought through his savings and begins to sell the clothes. Sushant was a bit different to think all about this. So he thought to do the same business in a different form so that he would not have to compete with his friend Sagar as well. आखिर दोस्त तो दोस्त ही है ना यार. So what he does is, he takes a market survey and ends up knowing the demand behavior and the problems faced by the consumers. After his study and analysis, he comes to decision of making an app that can allow his customers to customize the designs, fabrics, colors and many other things as per their choice. When they are done, they would order it and the garments which were tailored by some experts would get delivered to their doorsteps. Wow, what an idea! Now, can you make out a difference between the value proposition that was being delivered by both Sagar and Sushant? दोनों अलग थे कि नहीं? अब उस स्टोरी से बाहर आ जाओ चलो और सुनो. The thing that Sagar did was a business, और जो हमारे प्यारे सुशांत ने किया was a startup. सागर का बिजनेस मॉडल प्री डिफाइंड है, ओल्ड है, सिंपल है कि होलसेल में खरीदना है और रिटेल में बेचना है. सुशांत का बिजनेस मॉडल अलग है, वो कुछ यूनिक है, वो कुछ ऐसा है जो वहाँ उसके मार्केट में उससे पहले हुआ ही नहीं है. सागर के बिजनेस में इनोवेशन नहीं है, सुशांत के स्टार्टअप में एक मस्त इनोवेशन है, दैट ऐप, और वो कस्टमाइजेशन वाली चीज. सागर के बिजनेस में कोई ज्यादा रिस्क नहीं है इसलिए उसकी लाइफ में भी रिस्क नहीं है. बट व्हेन यू आर रनिंग अ कंप्लीट डिफरेंट ऐप एंड गिविंग अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस टू द एंड कस्टमर्स इन केस ऑफ सुशांत, तो बेटा रिस्क तो पक्का है, बिकॉज ही डजंट नो कि लोग वो ऐप को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं. सागर के बिजनेस में कोई एडवेंचर नहीं है. अब यार एक दुकान खोल के उसको एक मार्केट में चला रहे हो तो इट्स जस्ट एज सिंपल. बट इन केस ऑफ सुशांत एडवेंचर तो बहुत है. स्टार्टअप्स का यही तो मजा है यार, कि द जर्नी इज एज कूल एज रोलर कोस्टर एंड रिलीजेस अ गुड अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन इन यू. Sagar is not providing anything new to the society, whereas Sushant is definitely delivering some good values by innovating the process of buying your garments of your choice and your creativity. Sagar is not solving an in-depth or a niche problem of the society, और वहाँ Sushant is all set to solve the problems of those users who wish to wear clothes of their own choice in terms of design, color, text, fittings, etc. Sagar would not be able to expand his business as much as Sushant. But why? Because यार वो करके भी कितना कर लेगा? Most to most वो अपनी शॉप किसी दूसरी सिटी या स्टेट में खोल लेगा. बट एक्चुअली में वो कर क्या रहा है? रीसेलिंग ही ना. प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा in his daily and actual course of time and operations of the business. Whereas Sushant can definitely expand his business even at international level. But how? Because यार वो simply एक ऐप है, प्लस उसके एक्सपर्ट टेलर्स हर जोग्राफिकल लोकेशन पे अवेलेबल हैं और डिलीवरी भी आजकल कोई बड़ा है. तो अल्टीमेटली आवर सुशांत इज नॉट बाउंडेड जोग्राफिकली, राइट. सागर को अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिस्क आई भी तो वो सेम होगी जो बाकी रिटेलर्स को आई होगी इन हिज मार्केट, विच मीन्स दैट उसकी रिस्क ऑलरेडी नोन है एंड सागर वो डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड फॉर देम. बट इन केस ऑफ सुशांत जो उसने स्टार्ट किया है वो बहुत ही एडवांस लेवल का है, जिसकी रिस्क कितने एक्सटेंट तक होगी उसके लिए सुशांत प्रिपेयर तो हो सकता है, बट श्योर नहीं हो सकता कि वो कौन सी होगी और कितनी होगी. सागर अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा. आफ्टर ऑल दैट इज जस्ट अ शॉप इन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स. बट सुशांत का स्टार्टअप बहुत सारे कॉम्पिटेंट नीडी कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है, वेदर इट बी इन एन ऐप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डेटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अदरवाइज. अरे हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सागर के पास ऑलरेडी कैपिटल था विच ही यूटिलाइज्ड इन अ वेरी गुड वे.
लेकिन सुशांत के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी। ऑल्सो वॉट एवर ही इमेजिन टू डू वॉज नॉट सर्टेन। सागर के एरिया ऑफ ऑपरेशंस लिमिटेड थे एंड प्री डिफाइंड थे, like buying from wholesalers or textile industry and selling them at retail prices. Whereas the idea of Sushant was kind of an experiment, which was a trial and tested type of thing. So जहाँ आप कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कैपिटल लगाने में 2 बार तो सोचना ही पड़ता है ना यार। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो स्टार्टअप्स को बिजनेस से डिफरेंशिएट करते हैं। इफ़ यू नो एनी प्लीज़ कमेंट बिलो। और हाँ, वो रिस्क विस्क वाली बात को ज़्यादा सीरियसली मत लेना लाला। रिस्क हर जगह होती है, लेकिन धंधा करते करते एक एडवेंचरस लाइफ जीना, कुछ नया सीखना, कुछ नया क्रिएट करना, अपने नेटवर्क को एक्सपांड करना, सोसाइटी को कुछ अच्छा वैल्यूएबल प्रोवाइड करना, अपनी और अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को आसमान तक ले जाना, ये सब प्रिविलेजेस एक स्टार्टअप में ही हो सकते हैं। स्टार्टअप कोई नई चीज़ नहीं है। जब जमशेदजी टाटा ने टिस्को शुरू किया था तब वो भी उस टाइम का स्टार्टअप ही था। But nowadays, with the advancement of information and technology, people are knowing and showing their interest more in this wonderful journey. इसलिए ये आजकल इतने ट्रेंड में है। यार, जहाँ अर्निंग करते करते लोगों का भला हो सकता हो, वो काम कौन नहीं करना चाहेगा। इसलिए लोग आजकल स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड आई विश कि आप भी एक मस्त स्टार्टअप शुरू करें अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यार, सो दैट हमें आगे ऐसे और कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।